Good evening. So, just do one thing quickly. Start in the chat box. Start writing whatever doubts you all have explicitly. अगर आप लोग को कुछ पूछना है तो प्लीज लिखना स्टार्ट कर दो in the chat box. Also, few things that I want to discuss. आप लोग के एग्जाम्स कब है IFOA के डेट? Can anyone tell me the date, please? 15, 17. Okay. So since our exams are on 15th and 17th, अभी almost 2 months है हमारे पास, and according to the targets, next week के end तक we should finish our syllabus for IFOA. ठीक है? This weekend we are finishing risk models chapter 19-20 and Copulas, which is chapter 17. Next week we'll be focusing on 13-14, which is time series. ठीक है? Which is a lengthy chapter. तो उसमें काफ़ी पेपर ए एंड पेपर बी दोनों के क्लासेस हैं, बट सम्स आप लोग देखो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 2-3 साल के सम्स हैं, 2 साल के इनफैक्ट 2-3 terms were there which were very difficult. Otherwise, you will see that the sums are also very common. Now, few things. Let's get back. What we have to do. So after next week, तो हमारे पास कितने weeks बचेंगे? And if you simply just count the number of weeks that we will be left with, can anyone tell me how many weeks we'll be left with? So we'll be left with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weeks almost. ठीक है? तो हमारे पास 7 weeks होंगे just after next week end. 7 weeks is very good for revision. क्या क्या हमें revise करना है? We have to focus on firstly completing all the revision notes again, doing all the sums which are difficult. Sums which are not difficult, at least just try to just go through them once. That is one thing. Second is your ex assignments. तो जैसे ही आपका syllabus खत्म होता है, first thing is we move to ex assignments. Ex assignments के you will see that the recorded lectures are there. You have to go through the ex assignments videos if you want to, and then in class also we'll discuss some ex assignment questions, important questions, and after that again revision notes, and then the new past papers which are not there in the revision notes for paper A. And class notes आपको anyways every day half an hour read करना ही है. For paper B, what we have to do is, for paper B, you have to go through all the assignments, okay? And you have to basically solve all the past papers. So, up straight away, once your syllabus gets over, what you can do is, you can straight away start solving the past papers. Now, obviously, आपको कुछ याद नहीं आएगा as such, but आप लोग क्या कर सकते हो, दिन में 1 दिन या 2 दिन लेके एक पास पेपर पे फोकस कर सकते हो. ठीक है? And simultaneously you have to also do the assignment questions. So for example, every day if I'm giving, let's say suppose 2 hours to paper B, 2.5 hours to paper B, I'm revising for like 1 hour, and 1.5 hours I'm doing the past paper. Obviously, I'll not be able to finish the entire past paper at like completely, but what I will do is I will जितना हो सके एक सम दो सम आई विल डू दैट. ठीक है? सो वो एक साथ में आपका सारे पास्ट पेपर्स भी हो जाएंगे एंड आपका रिविजन सॉर्ट ऑफ भी हो जाएगा. नाउ बेसिकली दिस सेशन वाज जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट कि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं मैम शुड वी रजिस्टर. प्लीज क्विकली पुट डाउन योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. अभी 9:12 हो रहा है. आई विल एंड द सेशन एट 9:30. तो इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल नॉट टेक. तो अभी जो भी है क्विकली जस्ट टाइप इट डाउन रियली क्विक एंड वन बाय वन आई टेक योर डाउट्स. एंड जब मैं किसी का डाउट ले रही हूँ यू कैन अनम्यूट,
so that if you want to add in between anything you can quickly add. ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है, just listen to what others are saying so that आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए. So Arnav is saying, hi ma'am, I have completed 1 5 6 to 12. Uh, mm, Create a plan enough. So the plan for you will be, you are almost at par. What I can see is 1920 is not done for you, and chapter 16 is not done for, नहीं 16 भी हो गया है. So you're almost at a plan at the same pace. मतलब paper B में पीछे चल रहे हो. So paper B you can give 3 hours every day to complete the backlog, and प्लान ये है नेक्स्ट वीक के एंड तक ट्राई करो पूरा फिनिश करने का. 13 14 इज नॉट डन, एंड दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट डन. 19 20, सो 19 20 इस वीक के एंड, मतलब कल तो संडे है ही ऑलरेडी, ट्राई करो एटलीस्ट वीडियोज हो जाए, एंड पेपर भी जितना हो सके कल तक पिक कर लो. नेक्स्ट वीक पूरा टाइम सीरीज को दे दो, एंड अगर बुकलेट बचेगा रिस्क मॉडल्स को ऑब्वियसली उसको दे दो, एंड पेपर भी ट्राई करो फिनिश करने का. नाउ व्हाट इज योर मैक्सिमम, लाइक आप जितना मैक्स आउट कर सको, आप 2 से 3 पेपर ए का वीडियोस देख सको, 2 पेपर ए का बी का वीडियोस देख सको, 2 3 पेपर ए का वीडियो, सो ऐसे मिक्स मैच करके. एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको बुकलेट्स भी करने हैं, तो आप जितना वो मैक्स आउट कर सको दैट वुड बी डेफिनेटली ग्रेट. दैट्स द प्लान फॉर यू. अनफ. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीक के एंड तक फिनिश करना है सब कुछ. अगर पेपर भी थोड़ा मान लो बच भी जाता है तो उसके बाद वाला वीक का 2 3 days ले लेना, बट ट्राई टू फिनिश इट ऑफ. ऑलराइट, एंड फॉर दैट ऑब्वियसली आपको मिनिमम 7 to 8 hours पुट इन करना पड़ेगा. आई डोंट नो इफ यू आर वर्किंग और नॉट, सिंस आई हैव नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. Nilisha, you can unmute Nilisha. Ma'am, how to do revision if portion is completed? Also, I have taken. So those people who have taken revision, मैंने Nilisha already बता दी. You start with exercisements. उसका video refer कर करके exercisements 5 exercisements are there 5 to 6. Then you straight away move to all the booklets. Booklets में जो questions important लगे, डिफिकल्ट लगी, उसको टाइप करके प्रैक्टिस करो बात, एंड उसको जो और डिफिकल्ट लगे उसको मार्क कर दो, जो नहीं बने तो लास्ट मिनट वो देखना पड़ेगा. नोट्स गो थ्रू करो एवरीडे हाफ एन आवर. पेपर बी का वापस से सारे असाइनमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दो. को रीडिंग बैक एंड समरी रीड करना स्टार्ट कर दो, एंड पास्ट पेपर सारा पेपर बी का सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो यही आपका. एंड इफ यू गो टू माई क्लास वाइज डिटेल शीट, तो उसमें आप देखोगे रिविजन का एक शीट बनाया हुआ है मैंने. उसमें मैंने वीकली, तो आप अपने CS2 उसमें कंसोल पे जाना. CS2 में आपको जो येलो बॉक्स रहता है उसमें वो आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, रिविजन का एक शीट है, उसमें आपको वीकली मिल जाएगा कि कैसे आप रिवाइज कर सकते हो. आई थिंक वो 10 week प्रोग्राम है, तो उसको आपको थोड़ा शॉर्ट डाउन करके, कट डाउन करके 7 week में आराम से लेके आना है. ठीक है. तनिष, actuators mock will be starting very soon. We start generally in the month of August. But अगर नहीं तो next to next week of July we'll start off. मतलब last week of July we'll start. ठीक है. My syllabus, देखो mock आपको सबको देना है. mock ये मैटर नहीं करता आपका सिलेबस फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ है. We don't care. You should also not care. You should at least appear for mock. जितना mock दोगे उतना improve कर पाओगे. Just remember CS2 is one of the biggest hindrance and roadblock in your entire actual journey, which you have to clear. ठीक है. Prerna is saying my syllabus will get finished by July, and so I have 45 days to revise. प्लान ऑफ एक्शन आई हैव गिवन. अच्छा, जिनका भी एक और पेपर है जैसे CB1 है या CB2 है, CB2 ऐसा पेपर है कि वंस यू फिनिश द सिलेबस, CB2 में आपको कुछ नहीं करना होता, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पास्ट पेपर्स. ठीक है, एक एक पास्ट पेपर लो, एक एक पास्ट पेपर सॉल्व करो, एंड ऑब्वियसली कंपाइलर रीडिंग. तो एक दिन पास्ट पेपर सॉल्व किया, एक दिन कंपाइलर रीडिंग, वैसे करके आप लोग जैसे भी आप लोग को ठीक लगे वो आपको करना है. या फिर आप निकाल लो टाइम की 1 hour आई विल रीड द कंपाइलर, 2 hours आई विल सॉल्व द पास्ट पेपर, जितना हो पाता है. तो टाइपिंग अलग से कुछ ऐसा प्रैक्टिस करना नहीं है. तो ये हो गया डेडिकेटेड 2.5 hours और वट एवर यू गिव टू CB2. रेस्ट इंटायर टाइम यू इन्वेस्ट टू पेपर CS2, जहाँ पे आप दोनों कर रहे हो, पेपर बी भी कर रहे हो एवरीडे एंड पेपर ए. ऐसा नहीं कि एक दिन पेपर ए कर रहे हैं एक दिन पेपर बी कर रहे हैं, नहीं, दोनों एवरीडे करना है.
तो पेपर बी को 2 hours देना है एंड रेस्ट वट एवर टाइम 4 hours 5 hours यू हैव फॉर पेपर ए. ठीक है. Also, ma'am, in last two terms, time series came in paper B. Can we focus less on nahi? That's absolutely, you cannot set a trend at all in IFOA. सेम आई में भी नहीं कर सकते, एकदम नहीं. पहले हम लोग करते थे, लाइक व्हेन आई अपियर्ड फॉर माय CT4 CT6 एग्जामिनेशन, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू, वी यूज्ड टू, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मैंने ये चीज़ देख लिया था कि हर टर्म में वो क्या करते थे, एक टर्म में वो मार्कोव में NCD मॉडल देते थे और एक टर्म में वो मार्कोव जंप देते थे, चेन जंप ऐसा करते थे वो. ठीक है. तो मेरे को वो चीज़ दिख गया था. आई वॉज अपियरिंग इन September 2017 आई गेस. तो मेरे को दिख गया था कि मेरे टर्म में NCD मॉडल ही आएगा एंड NCD मॉडल्स यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम. आप शायद आपके में है नहीं, आई डोंट नो 2016-17 का पेपर्स. तो मेरे टर्म में कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट भी आ गया था, बट आई न्यू एट द बैक ऑफ माई माइंड कि NCD आने वाला है. बट नाउ लास्ट इनफैक्ट 6 years से, आई वुड से 6 years भी नहीं, 7 years से, जब से न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है 2019 से, देर इज नो ट्रेंड और पैटर्न दैट दीज गाइज आर फॉलोइंग, नो ट्रेंड व्हाटसोएवर. तो ये जो आप सोचोगे कि नहीं टाइम सीरीज पे कम फोकस करते हैं, यू विल एंड अप सीइंग कि टाइम सीरीज का वापस एक बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन आ गया. ठीक है. सो ये चीज पे मत ध्यान दो. मैम, मैथ क्वेश्चंस कंपल्शन फॉर ईच पेपर एंड each chapter should once tell about the chapters for which you need to go through math reading. Okay, very good question, Yug. First, I'll tell you math reading किसका important है. All the new chapters. तो अभी वो न्यू है नहीं, मैं अभी भी उसको न्यू बोलती हूँ एवरी टर्म. बट जैसे हो गए चैप्टर आपके 16 EVT, 17 कॉपिलास, 21 आपका मशीन लर्निंग एंड चैप्टर 12 मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन. ये 4 तो करना ही करना है. अब इसके अलावा आपके आगे चैप्टर 10-11, इफ यू रिमेम्बर ग्रेजुएशन में काफ़ी थ्योरी था बीच बीच में, गोइंग थ्रू इट, जस्ट गोइंग थ्रू इट, ऐसा कुछ रटने वाला याद करने वाला थ्योरी नहीं था. फर्स्ट फर्स्ट 9 चैप्टर्स नहीं, फर्स्ट 11 चैप्टर्स इनफैक्ट इज पूरा CT4 पहले का कंटेंट. तो मटेरियल इज वेरी क्विक, इजी गो थ्रू. अगर आपने कर रखा है गुड इनफ, नहीं कर रखा अभी लास्ट मिनट मत करना. को रीडिंग जो मतलब आपका बोल्ड वाला पार्ट होता है, वो आपके पास बहुत टाइम आपको लग रहा है कि है तो आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड. चैप्टर 1 यू कैन गो थ्रू अगेन, चैप्टर 1. बाकी टाइम सीरीज देखो, ऐसा चैप्टर है ना कि इतना बड़ा है कि अभी इस मोमेंट आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. सो आई एम नॉट सजेस्टिंग. और कोई नहीं, और कोई नहीं. तो ये 4 चैप्टर हो गए, चैप्टर 10-11 हो गए, चैप्टर 1 हो गया. ठीक है. बस ये, बस ये. एंड हाँ, समरी होता है ना हर चैप्टर के पीछे, तो समरी तो गो थ्रू करना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट. Can you tell, should we practice typing? Definitely you should. How should you practice typing, Tanish? So anyone who's sitting in CS2 have or has appeared for CS1 or CM1, CM2 maybe someone. तो ये सब आपने दे रखा है. तो एट दिस पॉइंट आई डोंट नो, इट्स लाइक अभी आपको ऑलरेडी नॉलेज है. कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे ही सिलेबस फिनिश हो उसके बाद जो भी करना है, इट शुड बी ऑन टाइपिंग, इट शुड नॉट बी रिटन. आप चाहे बुकलेट के क्वेश्चंस करो, आप पास पेपर के क्वेश्चंस करो, आप कुछ भी करो, इट शुड ओनली बी टाइपिंग, इट शुड ओनली बी टाइपिंग, नथिंग एल्स. ठीक है. एंड दैट्स हाउ यू विल प्रैक्टिस एंड दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव. एंड ट्राई करना तनिष, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट करना है. जैसे मार्कोव में आपकी टिपिकल सम्स है, मार्कोव में आपका NCD है, रैंडम वॉक है, जंप में आपके वो सब प्रूविंग सम्स है. फिर आप आ जाते हो चैप्टर 6, 7, 8 में, फिर आप आ जाते हो ECX फाइंड करने वाले चैप्टर में. फिर आप एक्सेल में अगर टेबल बना रहे हो तो वैसा एक सम कर लिया. फिर चैप्टर 10-11 के ग्रेजुएशन क्वेश्चन तो ईजी है, कुछ ऐसा है नहीं उसमें. तो ये जो है मेन इंटीग्रेशन जो आता है आपका चैप्टर 4-5 मार्कोव जंप में, वो थोड़ा है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेटिस्टिकल नोटेशंस ही है मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं. नाउ ऑल द टाइपिंग वीडियोस आर देयर इन योर प्लेयर एंड आल्सो सम आर देयर इन यूट्यूब एज वेल. सेम आपके प्लेयर में ऑलरेडी डाला हुआ है. आई वुड सजेस्ट कि आप प्लेयर वाले ही वीडियोस गो थ्रू करो, तो दैट आपको वो ईज आउट हो जाए.
एंड 2-3 वीडियोस रेफर करोगे तो हो जाएगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी दे रखा है CS1 CM1, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं होगा. But again, typing is definitely one of the hindrances and one of the disadvantages that students face, and one of the reasons as well of not clearing CS2 paper. Not even CS2 but CM1 CS1 सभी, CS1 में तो नहीं but CM1 CS2 इन दोनों में जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अगर थोड़ा फेल हो रहे हैं, गुड स्टूडेंट हु इज फेलिंग इज बिकॉज उन्होंने टाइपिंग प्रैक्टिस किया, टाइम पे नहीं खत्म हो रहा पेपर, स्टेप्स नहीं दिखा रहे. CS2 में ना स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक चीज और क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं यहाँ पे, कि जो आप लोग एग्जामिनर्स रिपोर्ट में देखते हो, दैट्स जस्ट एन इंडिकेटिव सोल्यूशन, दैट्स नॉट योर फाइनल सोल्यूशन और सोल्यूशन दैट यू शुड बी राइटिंग इन एग्जाम. इंडिकेटिव सोल्यूशन मतलब जस्ट अ फ्लो ऑफ सोल्यूशन दे दिया उन्होंने कि ये फ्लो होगा, ये आंसर है. बट प्रॉपर आंसर आपके बुकलेट में होता है. बुकलेट में थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन होता है, बट यू ट्राई टू शो ऑल द स्टेप्स. ठीक है. तो जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये, ट्राई टू शो द स्टेप्स, ईच स्टेप मार्क्स. ठीक है. डोंट आउट ऑन स्टेप्स. अगर जो इंसान 2, 3, 4 मार्क्स से फेल होता है वो इसीलिए ही फेल होता है कि उसने स्टेप्स नहीं दिखाए. ठीक है. Gitika, how much typing practice should I be doing considering CS2 is my first typing math paper? Gitika, I would highly recommend you to finish the syllabus as soon as possible and then start typing, because if you start typing right now, then you will have a lot of difficulties to complete your syllabus on time. सो आप ट्राई करो कि जितना जल्दी आपका सिलेबस फिनिश हो ताकि आप टाइपिंग कर सको. ना आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया हाउ टू प्रैक्टिस. मैम विच डेरिवेटिव वी शुड फोकस ऑन? डेरिवेशंस. एंड ना आपके क्वेश्चंस ना थोड़े वियर्ड हैं. विच डेरिवेशंस यू हैव टू फोकस? दिस इज नॉट अ स्कूल एनी मोर जहाँ मैं बताऊंगी हाँ ये प्रूफ करके आ जाना, ये प्रूफ करके आ जाना. ऑल द मतलब डेरिवेशंस है कहाँ, प्रूविंग है कहीं कहीं, और वो तो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ है. तो आई मीन बिग क्वेश्चन. आई कांट अंडरस्टैंड कि कौन सा मैं बोलूँ. हर चैप्टर को तो मैं लेके नहीं बैठूंगी और हर सम बताऊंगी अभी. एवरी चैप्टर, एवरी क्वेश्चन इन बुकलेट, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. एनीथिंग कैन कम. ठीक है. इन द एंटायर CS2 syllabus. Tanish Agarwal, and now I've completed till mortality projection. Only how can I cope up with the classes? Tanish, classes तो छोड़ दो, life तो नहीं. But you've done till chapter 12 is what I understand. Still, if you put in a lot of efforts, तो आप next 2 weeks में अपना syllabus finish कर सकते हो. तो मान लो मैं 1 week का अगर सोच रही हूँ, नहीं, नेक्स्ट 2 weeks में आप फिनिश कर सकते हो. आप स्टार्ट करो टाइम सीरीज से. अगर आपने 12th तक कर लिया है, यू स्टार्ट विद चैप्टर 13, 14, फिर जस्ट टाइम सीरीज, फिनिश दैट पेपर AB बोथ, विच यू कैन डू इन अप्रोक्सीमेटली 5 days. तो लगेगा ही, देखो. तो 5 days to that. Then risk models, EVT, sorry, yes, risk, नहीं sorry, loss distribution, EVT and reinsurance, which is chapter 15, 16 and 18. इसमें मान लो 2-3 दिन लग जाएगा along with booklet. 3 days, 8 days हो गए. फिर आपका बचेगा 19, 20, again 3 days. तो कितना हुआ? 5 + 3 + 3. ठीक है, 11 days. एंड बाकी बचा आपका चैप्टर 17, अगेन 2 days. 3 days लगेगा तो लगेगा. एंड मोडालिटी प्रोजेक्ट, machine learning, again 3 days. So I think that boils down to more than 14 days. Na? It comes down to 17 days approx. So if you can fit in, आप 2 week में करने का कोशिश, 2 weeks में करने का कोशिश कर सकते हो तनिष अग्रवाल. And then you can start with the revision. You will be left with 6 weeks of revision. आप 6 weeks में भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है. ठीक है. What I will do is I will make a Excel file of weekly revision. 7 weeks का बनाऊंगी क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 7 weeks आ रहे हैं फॉर अदर स्टूडेंट्स. आप लोग उसको थोड़ा अगर बढ़ा मतलब करोगे तो 6 weeks में भी हो जाएगा. By not using formula editor in typing, so can I use type in free flow English notations? Yes, आराम से, enough, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है. I understand what you are writing, I inverse I U1 + I. मुझे सब समझ आ रहा है. आराम से जो कंफर्टेबल आपको है. इवन पर्सनली मेरे से कोई पूछे तो मुझे भी वो एडिटर पसंद नहीं है. ठीक है.
Payal Jain, ma'am, I am 1 week behind the class and I'm working. So how much time to put in? Because I may not get more than 1 week leave at the time. So पलक जैन, ये तो मैं पायल जैन सॉरी, मैं तो आपको नहीं बता पाऊंगी आप कितना टाइम एवरीडे निकाल सकते हो, तो आप बताओगे ना कि आप कैसे. सो व्हाट लाइक कितना टाइम एनी वर्किंग स्टूडेंट इफ इज आस्किंग कि मैम कितना टाइम निकाले, तो अपार्ट फ्रॉम योर वर्क यू शुड ओनली स्टडी. अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या आपने बोल दिया, वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस कुछ नहीं बचा. बट आई अंडरस्टैंड वर्क लाइफ बैलेंस, बट अभी के टाइम पे लास्ट 7-8 वीक्स जो बचा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है. एंड इफ समवन इज डूइंग इट, वो बहुत महान इंसान है. मतलब आई हैव नॉट सीन एनी पर्सन हु इज अपियरिंग फॉर CS2 एंड 2 मंथ्स पहले वो वर्क लाइफ बैलेंस सोचेगा कि भाई वो जिम भी जा रहा है, वो जॉब भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है. वो उसने ऑलरेडी सिलेबस फिनिश कर रखा है, तभी वो सब कर रहा है. तो आपने अगर नहीं फिनिश किया, यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. आप मतलब खा रहे हो तब वो आपका टाइम ऑफ होगा, आप वॉशरूम में हो तो वो आपका टाइम ऑफ होगा, दैट्स इट. आप वर्क प्लस स्टडीज इज द टू ओनली थिंग यू हैव टू फोकस ऑन. तो आप जितना मैक्स आउट कर सको, 4 आवर्स 5 आवर्स, जितना एवरी डे कर सको एंड वीकली. हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, संडे इवनिंग मे बी 2 आवर्स 3 आवर्स टेक ऑफ, सो दैट माइंड रिलैक्स हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, या रात में सोने से पहले हाफ एन आवर कुछ स्क्रॉल कर लिया या फिर कुछ देख लिया, सिटकॉम या जो भी आपको पसंद है, दैट्स इट. उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है. सो जितना मैक्स आउट आप कर सको. ठीक है पायल, एंड 6 वीक्स फॉर रिविजन इज फाइन फॉर यू, अगर आप 1 वीक पीछे हो. Felicia, ma'am, I have backlog in our like till chapter 11 is done. So how much should I? Felicia, 4 hours दे दो पेपर बी को. उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे पेपर बी, फिर एक पॉइंट के बाद पेपर भी बोरिंग लगता है. पेपर ए स्टिल वी कैन स्ट्रेच, बट 4 hours भी मैंने ज्यादा, ठीक है 4 hours देने से हो जाएगा. ठीक है, ओके. अदर्स व्हाट अबाउट यू, टेल मी क्विकली. वी हैव जस्ट 1 minute लेफ्ट, बट अगर कोई कुछ पूछना चाहते तो मैं आंसर कर दूंगी. एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ. आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि दिख रहा है मेरा स्क्रीन. तो इसमें इन्होंने हटा दिया क्या रिवीजन, देखो कितने बदमाश है. इन्होंने इसमें मेरा रिवीजन हटा दिया. क्लास वाइज डिटेल गूगल शीट था, उसमें मैंने कितने सुंदर से रिवीजन का अपना बना रखा था. ओ मे बी इट्स नॉट विजिबल. ठीक है, इसको मैं वो करवा दूंगी, क्योंकि ये ना हो सकता है कि ये वाला जो शीट है, इसमें एडिटिंग राइट्स इसमें नहीं मिलेगा मुझे. जस्ट गिव मी 2 seconds, आई विल चेक. अगर मिलता है तो फाइन, वरना आई विल मेक वन न्यू रिविजन स्ट्रैटेजी. रिविजन मैंने बता दिया वैसे तो कैसे करना है वीकली. अगर किसी को कोई चाहता है कि मैं वीकली डिवाइड कर दूं, तो वो मैं कर दूंगी फिर. बट लेट मी चेक. अगर इन्होंने डिलीट किया होगा ना शीट, तो बहुत ही बुरी बात है, फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती. आई एम प्रीटी श्योर दे हैव डिलीटेड माय शीट. ऑल्दो ये व्यू ओनली है, इसका रिक्वेस्ट. ठीक है, नेवर माइंड. ओनर इज फैकल्टी, they've removed my this thing. क्या करते हैं ना सच्ची में यार. डिलीट कर दिया उन्होंने. I had very nicely prepared an Excel that I used to use in every session, like every semester, like, term. But now they've deleted it entirely. I'll have to make a new one. ठीक है, नो प्रॉब्लम. I'll ask them, अगर उनके पास है तो ठीक है. डिलीट कर दिया तो अभी कुछ कर नहीं सकते. I'll make a new one for you all. कोई और डाउट है गाइस? बोलो.
All right. Okay. Ma'am, I missed CS2 by 5 marks in April. Sid, I think we had a talk in one of the sessions as well. Uh, whatever you are doing now is revision only. आप ये समझो, ठीक है? It's not that अभी जो आप पढ़ रहे हो आप फ्रेश पढ़ रहे हो. सो अभी जो आप पढ़ोगे दैट्स अ रिविजन ओनली एंड यू आर सॉल्विंग बुकलेट्स. तभी आप वैसे ही तो रिवाइज करोगे ना. आपको वीडियोस तो देखने की जरूरत है नहीं. आपने मेरा क्लास नोट्स गो थ्रू करा एंड देन पास पेपर सॉल्व, मतलब बुकलेट सॉल्व किया. सो दैट्स सॉल्विंग पास पेपर ओनली. पेपर बी में भी सेम चीज करो. इंट्रोडक्शन जो को रीडिंग है एंड समरी है वो गो थ्रू करो, असाइनमेंट गो थ्रू करो, एंड देन वंस यू आर डन विद ऑल 21 चैप्टर्स आप पास पेपर्स पे आ जाओ पेपर बी में. एंड पेपर ए में तो आप रिवाइज ही कर रहे हो बुकलेट सॉल्व कर करके, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ इट ओनली. सिड. Yes, ma'am. Thank you. इज योर रियल नेम सिड और यू हैव जस्ट केप्ट इट सिड यहाँ पे? Ma'am, my real name is Siddhant. I have kept my name as Sid. अंडरस्टूड. मेरे लाइफ में दो करंटली मैं जिनको जानती हूँ, दो सिद्धार्थ है. एक है जो सिद्धार्थ सर आप लोग का पेपर भी लेते हैं, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, ठीक है. और एक सिद्धांत है, वो हमारे कैलकाटा ऑफिस में है. आप लोग कुछ लोग उनको उसको जानते होंगे. वो अलग ही है, मतलब ही इज, सिद्धार्थ सर है उसका पूरा ऑपोजिट है. तो दोनों इतने ऑपोजिट्स हैं, ठीक है. और कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? व्हाट आई विल डू इज, अगर ये इन्होंने शीट डिलीट करा है तो मुझे नया बनाना पड़ेगा. अगर नहीं करा तो उसी को रिवैम करके मैं दे दूंगी, बिकॉज मैं एवरी टर्म वही यूज करती हूँ स्ट्रैटेजी, जो चेंज नहीं होगा ना. जब पेपर में सिलेबस हल्का फुल्का चेंज होता है तो कैसे, स्ट्रैटेजी तो मेरा वही है 3-4 साल से. सब लोग को अच्छा भी मिल रहा है, मतलब उससे रिजल्ट. सिड, इफ यू हैव फेल्ड और एनी वन ऑफ यू हैव फेल्ड CS2 एग्जाम, एक चीज हमेशा मन में रखना, जब आप फेल होते हो ना नेक्स्ट टर्म, your revision strategy should change. So now that you have to see using the marking results that they give you, path marks and everything, कि आपका पैटर्न अगर नहीं चेंज होगा पढ़ने का, आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे तो याद रखना रिजल्ट विल बी रिपीटेड. You have to tweak 1 or 2 things in your revision, then only you will clear. It can be typing practice, it can be showing steps, it can be commenting, it can be anything. Okay. Anything else or should I end the session? Tomorrow we have a class at 10. I will be taking up मैंने क्या बोला था, कॉपिलास के क्वेश्चंस करेंगे. यस, कि रिस्क मॉडल्स के करने हैं, क्योंकि गौरव सर का भी है. तो ऐसे कर सकते हैं कि उसको मैं बोल दूंगी कॉपिलास करने और मैं कर दूंगी रिस्क मॉडल्स, ठीक है. बिकॉज आई विल टेक अ 1 hour सेशन टुमारो, बिकॉज आई हैव अ मीटिंग आफ्टर दैट. तो 10 to 11 मेरा एकदम शार्प 10 o'clock ज्वाइन करेंगे, होपफुली 10 o'clock शार्प, एंड देन वील एंड एट 11, ठीक है. मैम, इफ आपका सम क्लास अटेंड किया हो जो लेक्चर के बाद वाला ही था, तो कल अटेंड ना करे तो चलेगा? करना पड़ेगा. करना मेरे लाइव पड़ेगा. क्लासेस को अटेंड करने पे ही आपका एग्जाम क्लियर होगा डियर, यस, ओके. ठीक है. चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल, बाय बाय.